سب سے پہلے بات کرتے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی، تو آپ کو بتائیں گھی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں مختلف گھی برانڈز کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ، گھی 16 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ گھی کی قیمتوں میں اضافے پر عوام پریشان ہے، گھی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئی ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں مختلف گھی برانڈز کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ، گھی 16 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ گھی کی قیمتوں میں اضافے پر عوام پریشان ہے، گھی 16 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ گھی کی قیمتوں میں اضافے پر عوام پریشان ہے، گھی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں مختلف گھی برانڈز کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ ہو گیا، گھی کی قیمتوں کو پر لگ گئی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں مختلف گھی برانڈز کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ جی بالکل، پام آئل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد گھی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آج بھی 16 روپے فی کلو جو درجہ دوم گھی ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا، جس سے بلا شبہ شہری پریشان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب گھی خریدنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف دکاندار یہ کہتے ہیں کہ ان کی سیل بری طرح متاثر ہو گیا۔ دکانداروں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اثر بتائیے گا کہ کتنی قیمت کم ہوئی ہے، آپ کا کاروبار کتنا متاثر ہو رہا ہے صورتحال سے؟ ڈیلی پام آئل بڑھ رہا ہے، روز بہ روز پام آئل کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ 30 روپے کلو 5-6 دن میں بڑھ گیا کہ گاہک بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہم بھی پریشان ہیں۔ آج دن گاہک سے لڑائی جھگڑا روز آئے دن یہ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں۔ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے حکومت سے اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر قابو کیا جائے، سبسڈی دی جائے RBT پام آئل پہ، تاکہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو کم ریٹ پہ ملنا چاہیے۔ بالکل 5 دنوں کے دوران جو گھی کی قیمتیں ہیں اس میں قریباً 30 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے۔ تاہم گھی کے جو ڈیلرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کی جو قیمتیں ہیں اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تاہم درجہ اول جو گھی ہے اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس پر شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ گھی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ جی مبشر حسن نقوی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں فضائی آلودگی خطرناک حد کو بڑھنے لگی، آلودگی خطرناک حد کو چھونے لگی۔ شہر دن کے اوقات میں شام کا منظر پیش کرنے لگا۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازار سموک کی لپیٹ میں، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 323 تک پہنچ گیا۔ اندرون شہر میں حد نگاہ کم، ادھر شہریوں کی جانب سے بھی انسداد اسموگ SOPs کو ہوا میں اڑانے کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ ماحولیات نے آئندہ چند روز میں اسموگ میں مزید اضافے کی پیش گوئی کر دی۔ مزید جانتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم۔ جی بالکل، فیصل آباد کی ایئر کوالٹی انڈیکس اور سموک کے حوالے سے بات کرتے چلے تو شہر فیصل آباد اس وقت صرف سموک کی لپیٹ میں ہے۔ ہر طرف ہر جانب شہر فیصل آباد میں صرف سموک ہی نظر آ رہی ہے۔ اگر اس وقت بھی فیصل آباد کی بات کریں تو اس وقت فیصل آباد کے گھنٹہ گھر بازار کے اندر موجود ہوں، اور کیمرہ مین عثمان تاج آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ریل بازار ہو، جھنگ بازار ہو یا دیگر بازار، سب کے سب بازار اس وقت صرف سموک کی لپیٹ میں نظر آتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ شہر میں حد نکاح جو ہے وہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر سموک تو بڑھ، لیکن دوسری جانب اگر ہم فیصل آبادیوں کی بات کریں تو فیصل آبادی جو ہے وہ بھی سموک کے اوپر SOPs جو پنجاب حکومت کی جانب سے لگائے گئے تھے ان کے اوپر بھی غور کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ ان کی جانب سے بھی نہ تو ماسک کا استعمال کیا جا رہا اور نہ ہی کالے چشمے کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ میں سموک کے حوالے سے بتاتی چلوں اس کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی، تو فیصل آباد میں صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو تھے وہ 243 ریکارڈ کیے گئے تھے 12 بجے کے قریب، لیکن اس وقت فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 350 پوائنٹس تک جا پہنچا ہے، جو کہ خطرناک ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے دن کے وقت میں ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل آبادی جو ہے اس ایئر کوالٹی انڈیکس سے بڑھتی ہوئی سموک کی وجہ سے اپنا خیال نہیں رکھ رہے۔ ماسک کا استعمال میں نے بھی اسی لیے کیا ہے کہ سموک سے بچ سکوں، آپ بھی ماسک کا استعمال کریں تاکہ خود کو سموک سے بچا سکیں۔ لیکن اگر ہم انتظامیہ کی بات کریں اور انتظامیہ کے جو انتظامات ہیں ان کی بات کریں تو فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر ضلع انتظامیہ اس طرف بالکل بھی غور نہیں کر رہی، نہ تو شہریوں کے اوپر جو ہے وہ سموک سے SOPs جڑے جو ہیں ان پہ کوئی عمل درآمد کروا رہی ہے، اور نہ ہی متعلقہ محکموں کو روک پا رہی ہے کہ سموک سے ریلیٹڈ جو وجوہات ہیں ان کو کم کر سکے، جس کے اندر دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ FWMC کی جانب سے کوڑے کو آگ لگا دینا، PHA کی جانب سے گھاس پھوس کو آگ لگا دینا جو ہے وہ ایک معمولی بات بن چکی ہے۔ بھٹوں کو زگ زیگ نہ کرنا جو کہ ہماری شہر کی فضا کو آلودہ کر رہی ہے، اس وقت اس طرف غور نہیں کیا جا رہا، جبکہ صرف کاغذی کارروائیوں کے اندر موجود ہے۔ اور اب شہر کی یہ صورتحال ہے کہ دن کے وقت میں بھی رات کا سما پیش ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے دن گزرے گا محکمہ ماحولیات کا بھی یہ کہنا ہے کہ فضا کی جو ہے وہ مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی۔ طبی ماہرین کا
एहतियाती तदाबीर करें, इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें ताकि सांस के जरिए पेट की या उसके साथ साथ दीगर बीमारियां जो हैं उससे बच सकें। जी फैसलाबाद का शहर दिन के औकात में शाम का मंजर पेश करने लगा है। स्मोक की तरफ स्मोक ही स्मोक है। घंटा घर के 8 बाजार स्मोक की लपेट में। मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के बाद चिन्योट शहर भी स्मोक के चुंगल से ना निकल सका। शहर और गिरदोनवा में ताहाल स्मोक की चादर तनी हुई है। स्मोक की चादर से शाहराहों पर हद्दे निगाह में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। अपडेट कर रहे हैं, चिन्योट शहर भी स्मोक के चुंगल से ना निकल सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकार घुमन से। जी वकार। चिन्योट शहर और गिरदनवाह की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता शब से स्मोक और जो फोक की एक जो चादर है वो गिरदनवाह में तनी हुई है। चिन्योट शहर के अंदर भी सुबह से सूरज की किरणें नहीं पहुंच सकी। सूरज इस वक्त फॉग और स्मोक में छुपा हुआ है। इस वक्त अगर हम AQI लेवल की बात करें तो चिन्योट का जो आज का AQI लेवल है इस वक्त 255 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। फॉग और स्मोक की ये जो सूरत हाल है अगले 24 घंटों के दौरान भी इसी तरह बरकरार रहेगी। ताहम इस वक्त अगर हम हवा में नमी के तनासब की बात करें तो वो 64% रिकॉर्ड किया गया है। आज जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये रात के औकात में ख़ास तौर पर जो फॉग की डेंसिटी है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता शब भी मुख्तलिफ चिन्योट से भी मुख्तलिफ शाहराएँ जो मोटरवे को लिंक करती हैं, मोटरवे बंद होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी रश रहा। डॉक्टर्स के मुताबिक जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाने की अपीलें की जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि मास्क के बगैर कम अज़ कम बाज़ारों में, गलियों में, सड़कों में ना निकला जाए ताकि स्मोक के जो असरात इंसानी जिस्म पे पड़ रहे हैं उससे बचा जा सके। जी वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद इंतजामिया धुआं छोड़ती गाड़ियों को बंद करने में नाकाम है। धुआं छोड़ती गाड़ियां आलूदा फजा को मजीद आलूदा करने में मसरूफ। हुकूमत ने धुआं फैलाने वाली गाड़ियां मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर रखा है। अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद इंतजामिया धुआं छोड़ती गाड़ियों को बंद करने में नाकाम है। मजीद तफसीलात जानते हैं कामरान सईद से। जी कामरान। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से कहा तो बहुत गया है, इक़दामात किए जा रहे हैं और अहकामात जारी किए गए हैं कि धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां जो कि स्मोक का एक बड़ा सबब बनती हैं उनको जो है बंद किया जाएगा, चलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है सड़कों पर फैसलाबाद की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं सरेआम दंदनाती फिर रही है। इस वक्त भी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 244 पर है फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये काफ़ी ज़्यादा है। जो हैजर्डस होता है, ख़तरनाक होता है, वो 150 होता है, लेकिन 244 तक पहुंचा हुआ है। और मुसलसल जो है हम इस पर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। लेकिन फैसलाबाद की जो ज़िले इंतज़ामिया है वो सोई हुई है और कोई इन गाड़ियों को रोकता हुआ नज़र नहीं आ रहा जिनमें ये एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो जिनके धुएं से निकलते हैं और स्मोक का बाइस बनते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान सईद। अब आपको बताएं, बढ़ती फिजाई आलूदगी में फैसलाबादी अपनी सेहत से खेलने लगे। शहरी पाबंदी के बावजूद मास्क के इस्तेमाल से गुरेजा। जिले इंतजामिया ने शहरियों को स्मोक के रहमो करम पर छोड़ दिया। अफसरान बारा दफ्तर तक महदूद, कोई भी मुनज़्ज़िम हिकमत अमली ना बनाई जा सकी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली। फैसलाबाद में हर गुजरते दिन के साथ, बल्कि यूं कहिए हर गुजरते लम्हे के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमत पंजाब की जानिब से मास्क पहनने की तजवीज़ दी जा रही है, साथ में डॉक्टर्स कहते नज़र आ रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, उस पर ज़िले इंतज़ामिया अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। अफसरान बाला अपने दफातर से बाहर निकल कर शहरियों को किसी किस्म की कोई भी तजवीज़ देते या इस मास्क पहनने पर अमल करवाने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी जानिब जो हुक्काम हैं उनकी कार्रवाइयाँ भी ना होने के मुतरादिफ हैं। शहर भी बड़ी तादाद में बगैर मास्क के घूम रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो कि बड़ी फ़ज़ाई आलूदगी है वो उनको डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रही है। फेफड़ों के अमराज, सांस लेने में दुश्वारी और इसके साथ साथ गले के अमराज हो रहे हैं। और ये फेस मास्क वाहिद बुनियादी हल है जिसके इस्तेमाल से शहरी स्मोक से महफूज रह सकते हैं और स्मोक के ख़तरनाक असरात से भी कमोबेश महफूज रह सकते हैं। लेकिन जो इदारे हैं, जो इंतज़ामिया है, वो इस पर खातिर खा अमल करवाने में कोई मौसर किरदार अदा करती हुई दिखाई नहीं दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली नारो।
फैसलाबाद नहीं, ये चिन्योट है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ी मालिकान खैर मनाएं। चिन्योट ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन, 100 से जायद गाड़ियों के चालान, 14 ड्राइवर्स के खिलाफ FIR दर्ज। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। स्मोक के तदारक के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी इक़दाम जो है वो करना शुरू कर दिए गए हैं। DSP ट्रैफिक बाबर नवाज का इस सिलसिला में कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 100 से ज़ायद जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके चलान किए गए हैं। इसी तरह 14 जो ऐसी गाड़ियां थी धुआं छोड़ रही थी, उन ड्राइवर्स पर भी 14 जो ड्राइवर हैं उनके खिलाफ भी मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवाए गए हैं और उनका इस सिलसिला में कहना है कि 100 से ज़ायद जो गाड़ियों के चलान वो भी किए गए हैं। इसके साथ साथ स्मोक के खात्मे के लिए उनका इस सिलसिला में कहना है कि तमाम कमर्शियल नॉन कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस जो सर्टिफिकेट है उन्हें लाजमी करार दिया गया है। इसके साथ साथ ड्राइवर्स को हदायत की गई है कि वो हर सूरत अपनी जो गाड़ियां हैं उनकी बर वक्त मुरम्मत को भी यकीनी बनाएं। इसके साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक का खात्मा जो है वो बन रही है और इस सिलसिले में DPO चिन्योट का कहना है कि हम सब की जिम्मेदारी है फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए तमाम तर इक़दाम जो है वो किए जाएँ, जिस पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 100 से ज़ायद जो मुख्तलिफ धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ थी उनके चलान किए गए हैं। इसके साथ साथ 14 ऐसे ड्राइवर से ऐसी गाड़ियाँ थी जो धुआं छोड़ रही थी और उन ड्राइवर्स पर मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। और इस सिलसिले में DSP ट्रैफिक का कहना है कि चिन्योट जिला भर में भुआना और लालिया में भी इस तरह मुख्तलिफ जो ऐसे धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर। जड़ावाला इंतजामिया के ज़ेरे तमाम स्मोक आगाही कैंप का इनाकाद किया गया। AC सफदर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहसिन मजहर ने शहरियों में मास्क तकसीम किए। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद अरसलान से। जी बताइएगा। बिल्कुल, तहसील इंतजामिया की तरफ से एंटी स्मोक के हवाले से अवेयरनेस कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें लोगों को स्मोक से बचने के हवाले से आगाही फराहम की जा रही है। इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला ने शहरियों में मास्क भी तकसीम किए गए हैं और इनके साथ साथ मोहसिन मजहर जो कि CO जड़ावाला वो भी मौजूद थे। मजीद बात करते हैं, मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला सफदर शबीर साहब मौजूद है। मजीद इनसे भी बात करते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि तहसील इंतजामिया स्मोक के हवाले से क्या क्या इक़दाम कर रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हमें ये डायरेक्शंस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हैं और बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से हदायत हैं कि जो इस टाइम पूरे पंजाब को स्मोक के हवाले से मसाइल दरपेश हैं, उसके हवाले से एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया क्योंकि ये बेसिकली हम सब की जिम्मेदारी है। इंतज़ामिया अकेली कुछ भी नहीं कर सकती है, तो इसके हवाले से जो तहसील इंतजामिया की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनमें सबसे पहले तो जो स्टबल बर्निंग हो रही है, जो फसलों की बाकियात है उनको जलाने का जो किया जा रहा है उस पर बहुत ज़्यादा भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। मजीद ये जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक जो कि धुआं देती है जो प्रॉपरली सर्टिफाइड नहीं है उसको भी रोका जा रहा है और इसके अलावा जो आम पब्लिक के अंदर अवेयरनेस सेमिनार है वो किया जा रहे हैं। थैंक यू। तहसील इंतजामिया स्मोक के हवाले से जो इंतजामात हैं वो करने के लिए मजीद इंतजामात कर रही है और मुतहरक है। उनका यही कहना था कि तहसील इंतजामिया अपना स्मोक के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद अरसलान। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में 13 करोड़ 90 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। एक माह के दौरान मुल्क की एक्सपोर्ट 4.90% बढ़ गई। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि रिलीफ दिया जाए तो 2025 में एक्सपोर्ट बढ़ाने का हुकूमती ख्वाब पूरा किया जा सकता है। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज। एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए अच्छी खबर है कि 4.90% एक्सपोर्ट जो है उसमें इजाफा हुआ है गुज़श्ता एक महीने के अंदर। ये बिलाशुबा फैसलाबाद के कारोबारी हजरात भी इस पर जो है मुतमईन दिखाई देते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर्स की एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ी है। राना सिकंदर आजम हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, एक्सपोर्ट बढ़ी है, हुकूमती मदाखलत इसमें है, ये एक्सपोर्टर्स की अपनी एफर्ट है? भट्ट साहब देखें, ये 4.5% जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई है उसमें रोल किसका है? 1% भी हुकूमत का इसमें रोल नहीं है। अभी 25 दिसंबर आ रहे हैं, न्यू ईयर आ रहा है और उसके लिए एक्सपोर्ट बढ़ी है, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रखी जा सकती है अगर हुकूमत दो काम कर दे। एक तो इनके जो रिफंड्स वाले मामले हैं वो इनका कैपिटल होता है, उसी से इनका बिजनेस चलता है, अगर वो रिफंड टाइमली दे दें। और सेकंडली अगर आप बिजली के टैरिफ पे नजरसानी करें और टैरिफ वो कर दें कि जिससे आप रीजन में कंपटीशन जो है आपका वो कंपटीटर आप बन जाए। 20% भी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए मनात जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक्सपोर्टर्स को इस वक्त बिजली जो है पूरे रीजन के अंदर, पूरे खिते में सबसे ज्यादा महंगी मिल रही है और जिस तरह से वर्किंग कैपिटल है, रिफंड जो है वो अगर टाइमली मिलते जाएंगे तो एक्सपोर्ट के जो बढ़ाने के ख्वाब हैं हुकूमत के वो भी पूरे किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट।
اب آپ کو بتائیں فیصل آباد کے عوام کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے 11 ارب کا پیکج منظور، واسا نے نئے منصوبوں کی ڈیزائننگ پر کام کا آغاز کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وقاص احمد بیگ سے۔ جی وقاص۔ واسا فیصل آباد کی جانب سے حکومت پنجاب کی طرف سے منظور ہونے والے 11 ارب سے زائد کے پیکج کے حوالے سے تمام تر پلان ترتیب دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایم ڈی واسا عامر عزیز کا یہ کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں ایسے مستقل مسائل والے علاقے جن میں خاص طور پہ جنگ روڈ، سیف آباد اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کر لی جائے تو نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کی بیک سائڈ کے تمام علاقے اور اس کے علاوہ شمس آباد جڑاوالا روڈ پر اسلام پورہ کے علاقے جو ہیں ان کو نہ صرف مستقل مسائل سے پاک کیا جائے گا بلکہ وہاں موجود تمام تر فیسلٹیز واسا کی جن میں واٹر ریسورسز کے حوالے سے ہیں ان کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ سیوریج کے معاملات جو ہیں ان کا بھی حل نکالا جائے گا، جبکہ دوسرے نمبر پر ٹرنک سیور جو ہے وہ بنائے جائیں گے شہر کے مختلف مقامات پر، جس کے لیے ڈیزائننگ جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے جو آئندہ ماہ میں بھجوائی جائے گی پی این ڈی پنجاب کو، جس کے اپروول کے بعد ان پر عملی طور پر کام جو ہے اس کا آغاز 1 جنوری سے کیا جا سکے گا۔ اس حوالے سے ایم ڈی واسا عامر عزیز کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف سیوریج کے مستقل مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ واٹر کے حوالے سے یعنی صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے موجود مسائل جو ہیں ان کا حل بھی جو ہے وہ کیا جائے گا اور فیصل آباد شہر کا 75% تک علاقہ جو ہے وہ واسا سروس ایریا میں شامل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ وقاص بیگ۔ فیصل آباد کے 10 ٹکوک میں بی ایچ یو کی ریویمپنگ کی اسکیم، محکمہ بلڈنگ نے فیصل آباد کے 10 بی ایچ یو کا تخمینہ چیف انجینئر کو ارسال کر دیا۔ بی ایچ یو کی ریویمپنگ پر 22 کروڑ سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران۔ فیصل آباد میں 10 بی ایچ یو کی ریویمپنگ کی اسکیم ہے۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کی جانب سے 10 بی ایچ یو کا جو تخمینہ لاگت ہے وہ چیف انجینئر بلڈنگ زون کو ارسال کر دیا گیا ہے اور فیصل آباد کے مختلف چکوک میں 2 کروڑ لاگت کا جو تخمینہ لاگت ہے 10 بی ایچ یو کا ارسال کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 22 کروڑ سے زائد کی لاگت آئے گی۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کی جانب سے چیف انجینئر بلڈنگ زون کو سزا کی گئی ہے کہ مالی سال 2024 اور 25 کے لیے 10 بی ایچ یو کا تخمینہ لاگت جو ہے وہ ارسال کر دیا گیا ہے اور ان تمام بی ایچ یو کے جو بقیہ اور ریمیننگ فنڈز ہیں وہ جاری کیے جائیں۔ مالی سال 2024 اور 25 کے لیے فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں جو بی ایچ یو اور آر ایچ سی کی اسکیموں پر بلڈنگ کا کام کی جانب سے کام شروع کیا گیا تھا، ابھی بلڈنگ کا کام کی جانب سے سزا کی گئی ہے کہ مالی سال 2024 اور 25 کے لیے ان 10 بی ایچ یو کا ترمیم شدہ جو 22 کروڑ کی لاگت تخمینہ لاگت ہے وہ منظور۔ بہت شکریہ عمران اسلم۔ اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ شمس الرحمان کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، ایمرجنسی ایکسٹینشن میں سہولیات کا جائزہ لیا، مریضوں سے ادویات کی فراہمی بارے دریافت کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں کمیل حیدر سے۔ جی کمیل۔ اسسٹنٹ کمشنر شمس الرحمان نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا وزٹ کیا ہے، مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بتائیے گا لگاتار وزٹس کا سلسلہ جاری ہے، اب بھی آپ فوراً آئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا چونکہ ایک سینٹرل ہاسپٹل ہے اور ڈسٹرکٹ کا میجر ایمرجنسی فیسلٹی ہے یہاں پہ، تو بار بار ہم وزٹس اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ایک تو ایکسٹینشن بھی کر دی ہے تاکہ ایمرجنسی میں بیڈز کا اور مریضوں کا رش کم ہو، اور ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی جو ایکسٹینشن ہے، جو نیا 60 بیڈڈ بن رہا ہے، بلڈنگ بن رہی ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں تاکہ اس کو جلدی سے جلدی کمپلیٹ کیا جا سکے۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز، میڈیسنز اور تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اور اس موسم میں اور اس سموگ میں ایڈیشنلی میں یہ ضرور کہوں گا کہ تمام لوگ غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں اور اس شدید موسم کی عدت سے بچنے کے لیے حفاظتی انتظامات کریں۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر کا یہی کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں تمام تر سہولیات موجود ہیں، تاہم اس موسم سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو اپنائیں تاکہ فضائی آلودگی سے بچا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کمیل حیدر۔ اب آپ کو بتائیں شہریوں کو لائن اینڈ لین کا پابند بنانے کے لیے فیصل آباد ٹریفک پولیس متحرک، جیل روڈ پر کونس نصب کر دی گئی، کنال روڈ پر بھی کونس نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب۔ بالکل، فیصل آباد میں موٹر سائیکل، رکشہ اور گدا ریڑھیوں کو روڈ کے انتہائی بائیں جانب چلنے کا پابند بنانے کے لیے پہلے مرحلے میں جیل روڈ پر کونج نصب کر دی گئی ہیں۔ یہ کونج چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد فرحان اسلم کی استدعا پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے نصب کی گئی ہیں۔ ان کونج کے نصب کرنے کا یہ مقصد ہے کہ فیصل آباد کے شہریوں کو خاص طور پر موٹر سائیکل سوار، رکشہ سوار اور گدا ریڑھیوں کو انتہائی بائیں جانب چلنے کا پابند بنایا جائے۔ چیف ٹریفک آفیسر کے حکم پر یہاں پر وارڈنز بھی تعینات کیے گئے ہیں جو رکشہ سواروں، موٹر سائیکل سواروں کو اس بات کی ہدایت کر رہے ہیں اور آگاہی دے رہے ہیں کہ موٹر سائیکل اور رکشہ
रोड के इंतहाई बाएं जानब सफ़र करें ताकि कीमती जानें महफूज रह सकें। और इस हवाले से CTO फैसलाबाद फरहान असलम की जानब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हादसा मोटरसाइकिल सवारों को पेश आ रहे हैं, जिनमें कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। और इन हादसा की सबसे बड़ी वजह मोटरसाइकिल सवारों का रोड के बीचों बीच मोटरसाइकिल चलाना है। उनकी जानब से ये अगले मरहले में कनाल रोड पर भी ये कौन नस्ब करने का इंदिया दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल। अब आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग के शहरी ट्रैफिक मसाइल से जान ना छुड़ा सके। वार्डन्स न होने से पुराना सब्जी मंडी रोड पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। मजीद जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। टोबा टैक्सिंग में पुराना सब्जी मंडी रोड चौक जो है वो ट्रैफिक के भाव या यहाँ पर जो है वो मुतासर हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो तैनात नहीं हो सके हैं। ताहम इस वक्त मेरे एरिया में जो है वो ट्रैफिक की जो है वो रवानी बुरी तरह से मुतासर, आप देख भी सकते हैं। ये रोड जो है वो अंडरपास के जो है वो होकर जाता है। ताहम जो है वो रेलवे फाटक बंद होने पर यहाँ से जो है वो ट्रैफिक सारी गुजारी जाती है। ताहम बेहंगम जो है वो ट्रैफिक के बायस तकरीबन जो है पिछले आधे घंटे से यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो बंद हो चुकी है तकरीबन। ताहम जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ से तकरीबन 10 से 15 कदम के फासले पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर पहुँचकर जो है वो ट्रैफिक की रवानी को जो है वो ट्रैफिक रवा करवाने में अपना किरदार अदा नहीं कर सके हैं। चंद कदम के फासले पर बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद हैं। रेलवे फाटक बंद होने पर यहाँ पर जो है वो अंडरपास पर जो है वो, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा भी सकता है तो अंडरपास पर जो है वो खासा रश बढ़ जाता है। पुराना सब्जी मंडी चौक जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। तमाम शहरियों ने जो है वो सिटी ट्रैफिक ऑफिसर से ये मुतालबा किया है कि चंद कदम की दूरी पर मौजूद जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनको जो है वो थोड़ी जहमत दी जाए और जो है वो पुराना सब्जी मंडी चौक पर जो है वो कम से कम जो है वो ट्रेन गुजरने के वक्त यहाँ पर खड़ा किया जाए, ताकि जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो और शहरियों को मुश्किलात का सामना ना हो और हादसा की शरह में भी कमी आ सके। अहमद नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मसाइल के हल के लिए शहरियों को बिजली दफातर नहीं जाना पड़ेगा। शिकायत के हल के लिए फेस्को ने बिजली सार्फिन को ऑनलाइन सहूलत मुतारिफ करवा दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस। कुल ट्रांसफार्मर खराबी और दीगर बिजली से मुतल्लिका जो मसाइल हैं वो सार्फिन फेस्को की जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहां पर शिकायत दर्ज करवा के अपने मसाइल ऑनलाइन हल करवा सकते हैं। इसी वाले से हमारे साथ ऐसी फर्स्ट सर्कल अमीर खान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। खान साहब, मैं बताइएगा कि लोग जो हैं वो अपने मसाइल के हल के लिए सब डिवीज़न दफातर में कॉल्स करते हैं और बहुत से लोगों की जानब से शिकवा अभी इससे मुतल्लिक किया जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जब आपको बिजली इस तरह की ना होने की या कोई शिकायत होती है तो आप फ़ौरन, हमारे पास 2 हेल्पलाइंस हैं, एक SMS सर्विस के लिए है और एक कॉल सेंटर है जो PITC लाहौर को कॉल जो है वो डायरेक्ट मिलती है। वहाँ पर कोई इस तरह लैंडलाइन की ज़रूरत भी नहीं होती, बंदे की भी ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट कॉल मिलाएं और उनको अपने मोबाइल जो आपका अपना बिल का नंबर है, रेफरेंस नंबर है, अपना मोबाइल नंबर है, वो उनको शो करवाएंगे, वो उनको लिखवाएंगे तो आपकी कॉल जो है वो आपका मैसेज जो है वो आपकी कंप्लेंट विद इन नो टाइम हमारे पास पहुंच जाएगी और उस पर हम फौरी तौर पे एक्शन शुरू करवा देते हैं। जब आपको दूसरी लाइन ना मिले तो आप 118 पे कंप्लेंट करवाएं जो कॉल सेंटर है, और या 8118 हमारा SMS सर्विस है, वहाँ पर अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करवाएं, वो फौरी हमारे पास जो है ना पहुँच जाएंगी, हम इसको रिजॉल्व करेंगे। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से दिए गए जो बिजली के बिलों पर प्रिंटेड नंबर हैं वहाँ पर कंज्यूमर जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करवा के अपने मसाइल का फौरी हल जो है वो यकीनी बना सकते हैं। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की सर्कुलर रोड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट सेल मेले में तब्दील। 4 दिन तक जारी रहने वाले मेले में इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम अशिया पर 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट सर्कुलर रोड फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से सेल मेला बड़ा लगाया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम ओरिजिनल आइटम्स पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है शहरियों को, और शहरी यहां से इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंतहाई सस्ते दामों खरीद सकते हैं। यहां पर दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी ब्रांड पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हमारे पास सारे ब्रांड मौजूद हैं। उन ब्रांड्स के ऊपर हमने अप टू 50% डिस्काउंट लगाया है। किसी एक दुकानदार ने नहीं, पूरी की पूरी मार्केट ने लगाया। सर्कुलर रोड फैसलाबाद मार्केट ने ये एक इनिशिएटिव लिया है ताकि कस्टमर घर से निकले, हमारे पास आए, हमसे प्रोडक्ट परचेज करें
और मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा हासिल कर सकें। मैक्सिमम फायदा हासिल कर सके। मियां साहब आप क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि वकास भाई ने बोला है, ये सर्कल रोड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की तरफ से ये इक़दाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, कंपनी की ओरिजिनल डिस्काउंट पे, ये नहीं है कि डिस्काउंट नहीं है, रेट बढ़ा के डिस्काउंट किया, नहीं, ओरिजिनल डिस्काउंट, कस्टमर को पता चलेगा कि ये डिस्काउंट है इंशाल्लाह। आज बिल्कुल फायदा उठाएं और बड़ा डिस्काउंट जो है वो तमाम ओरिजिनल अशिया पर आप ले सकते हैं, जिससे आपको भी फायदा होगा। और अगर जहेज का जो आपने सामान लेना है वो भी आप ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्काउंट पर ले सकते हैं। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का 14वां सिंडिकेट इजलास सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। डेप्टोलॉजी, फैमिली मेडिसिन, डर्माटोलॉजी और एस्थेटिक्स के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के आगाज और सीटें मजीद बढ़ाने की मंजूरी दी गई। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब मेडिकल कॉलेज को 2017 में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, जिसके बाद फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो करवाए जा रहे हैं। आज फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का 14वां सिंडिकेट का इजलास मुनक्किद हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक ने सिंडिकेट मीटिंग की जो इजलास था इसकी सदारत की। तहम वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर फरीद चौधरी, इसके साथ साथ रजिस्ट्रार फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अकमल रशीद ने वीडियो लिंक के जरिए सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के साथ जो था वो मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर 4 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो शुरू करवाने के हवाले से मंजूरी दी गई, जिसमें डर्माटोलॉजी शामिल है, फैमिली मेडिसिन शामिल है और इसमें दीगर कोर्सेज हैं जिन्हें शुरू करवाने के हवाले से अहकाम जारी किए गए। इसके साथ साथ सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की जानिब से सीटें बढ़ाने के हवाले से भी जो है मंजूरी दी गई है कि इसकी मज़ीद सीटें जो है वो बढ़ाई जाए ताकि मेडिकल शोबे से वाबस्ता अफराद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन।